which actually plays a building material of biology, entity and metabolic process. These elements or nutrients, these nutrients are classified as their amount to two groups, that is macronutrients and micronutrients. As per their requirement, they divide in two groups, that is essential and non-essential elements. Okay? The macronutrients constitute the major part of our diet and needed for physical growth and energy. जैसे कि पता ही है आपको कि हमारी फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं. दे आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन एंड वाटर. These carbohydrates are further divided as per their source, as per their structure. Like as their structure, they divided as monosaccharide, disaccharides, polysaccharides, oligosaccharides, है ना. And as per their source, they divide as wheat, how they get wheat or grains, fruits, etc. The proteins are also divided as many group or classified as many group as according to their structure: primary, secondary, tertiary, है ना, and quaternary, or also as their source like meat, pulses, है ना, और आपका soy, many other sources are there for the protein. So these are the macronutrients which are required basically for the physical growth and energy. The micronutrients generally refer the term for vitamins and minerals. They are required in certain amounts or a fixed amounts, and they are quite necessary for many of the body functions. Without, or we can say, the deficiency of these micronutrients cause many health issues. Okay? And there are basically, sorry, इसका लास्ट पेज कैसे आएगा? प्रीवियस पेज करिए आके प्लीज. आता है आप लोग को किसी को? चलेंगे क्या? करती हूँ मैं, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है. चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे पढ़ा देती हूँ यहीं से. तो metals plays in biology many important roles in the system, biology system, जैसे as a catalyst or structural cofactor participating in many biological system. They maintain the osmotic pressure or water content, or they are also is responsible of many electron charge transfer process and photosynthesis. So there are such 30 elements which are equally necessary, absolutely necessary in the body, and they are further divided into many groups like bulk elements which are required in huge quantity or ज़्यादा क्वांटिटी में जिनकी ज़रूरत होती है. They are called bulk elements like carbon, hydrogen, sulfur, oxygen and nitrogen. Others are, second group is mineral elements, or we can say the which are required in certain amounts, है ना, micronutrients or mineral elements. These are sodium, potassium, magnesium and calcium or chlorine. ठीक, they are 5. Other are trace elements which are required in less amount. They are zinc, copper, iron, nickel, vanadium, lithium, cadmium, tin and cobalt. And ultra trace elements which are just required in very little minute quantity. They are chromium, molybdenum, selenium, silicon, mercury, iodine, fluorine and boron. These all elements are quite important in other way in
functioning of our body. And these are 30 such elements. Now the next is biological role of metal ions. About 30% of enzymes have metal ion as their active sites. ज़्यादातर एंजाइम्स के जो हैं एक्टिव साइट्स में मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं एंड दे कंट्रीब्यूट टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व सेल्स, मसल सेल्स, आवर हार्ट, ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड मेनी अदर nutrients in the biological process. Some important matters we can discuss later on in detail. जैसे for example, some important metals here to discuss like calcium ion. Calcium formation the major part or the constitute our bones and teeth, or we can say strengthening our bones and teeth. They transfer nerve signals, or we can say facilitating the nerve to nerve communication. In contraction of muscle fibers, मतलब they are responsible for the functioning or contraction or relaxation of the muscles, regulating the heartbeat. Also activate the blood clotting factor. Also responsible for some secretion of important hormones and proteins or chemicals. This is the important role of calcium in our body. Second one is iron. Iron is used or the essential for the production of blood. It is also an important cofactor of many protein and vital enzymes. It's make a part of hemoglobin that carries oxygen from the lungs to other parts of the body. The third important element or ion is sodium. Sodium actually is important for regulating the osmotic pressure or balance the water content in our body. They also responsible to transmit the nerve signals and muscles contraction. Other one is potassium ion. Potassium is also have same kind of function. They also transmit the nerve signals and responsible for the muscle cell contraction and regulating the heartbeat. Basically both आपका sodium and potassium both are electrolyte as well as mineral, and their important role is to transport the nutrients inside the cell and waste product outside the cell. They balance the water content and fluid inside the cell and outside the cell. This is the sodium potassium pump आपने पढ़ा होगा मे बी. तो these are all both are the electrolyte as well as mineral. The next important ion is chloride ions. Chloride are responsible or help in regulate the osmotic pressure and water content in the body, and also enable the secretion of some stomach acids. Next one is magnesium ion. Magnesium is needed more than 300 biochemical reaction in the body. It helps in muscle contraction, in formation of bones, activates certain enzymes, and also balance the blood glucose level in the body. Got it? The next one is copper ion. Copper is important biocatalyst and available as vitamin B12. It helps in iron absorption and keep blood vessels, nerve immune system and bone healthy. Copper also involved in the production of RBC, antiviral, antibacterial compounds that prevent the infection. ऐसे compounds बनाता है जो हमें infection से बचाते हैं. Copper is also responsible for that and also responsible for the functioning of cells.
The next one is molybdenum iron. It is needed for the process of protein and genetic material, basically RNA and DNA, and helps in breakdown of drugs and toxic substances that enter the body. The other important iron is zinc iron. Zinc is help in cell division, cell growth and wound healing. It is also important for the metabolism of carbohydrate and needed for the senses of smell and taste. तो ये सारे छोटे छोटे आपके जो थे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, मेटल आयंस, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में क्वाइट इम्पॉर्टेंट है फॉर द फंक्शन ऑफ वेरियस बॉडी बायोकेमिकल रिएक्शंस. नाउ कुछ आपके कोर्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स हैं जो थोड़े डिटेल में आपको पढ़ने हैं, जो आपके कोर्स में है. दैट इज द कोबाल्ट आयन. ठीक, कोबाल्ट एंड विटामिन B12 भी हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो विटामिन B12 है बेसिकली उसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है और उसका एक्शन क्या है ये हमें देखना है. कोबाल्ट एंड विटामिन B12 एक्शन. Cobalt is found in both oxidation state 2 and 3. The important cobalt compound is cobalamin, in which cobalt is present in third oxidation state. Cobalamin and its related substance are important in various kind of biological. It is a very important biological compound and important variety of activities, especially and particularly in bacteria. First of all, vitamin B12 is isolated from the liver extract, and deficiency of vitamin B12 cause a disease known as pernicious anemia. What is that disease? इसमें क्या होता है pernicious anemia में कि जो प्रोडक्शन है RBC का वो कम हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B12 एंड इट सिम्टम्स इज द वीकेंड ऑफ स्टमक जो हमारा कमजोर हो जाता है और गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है ना. एंड व्हाई इट इज बिकॉज द इम्यून सिस्टम अटैक द सेल्स इनसाइड द लाइनिंग ऑफ द स्टमक वॉल. ठीक, और this disease is usually found in mammals by the increased secretion of methyl malonic acid, MMA भी जिसे हम कहते हैं. एक्चुअली इसका सिक्रेशन बढ़ जाती है, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है. बेसिकली तो किडनी इसे फिल्टर कर देती है, पर ज़्यादा क्वांटिटी में इसका इफेक्ट किडनी पे भी पड़ना लगता है और किडनी डिजीज हो जाती है. ठीक है ना. एंड देन टुडे इट इज कंट्रोल बाय गिविंग द 100 mg injection of vitamin B12. ठीक. Now the function or structure of vitamin B12. क्या स्ट्रक्चर होता है विटामिन B12 का, ये हम देखते हैं. In vitamin B12 the cobalt ion is coordinate in 4 nitrogen atom by Corin ring. Corin ring is a modified 2 or 4 ring of pyrrole ring. यहाँ पर देखिए 4 नाइट्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली कोबाल्ट लिंक से कनेक्टेड है, डायरेक्टली बॉन्डेड C1 एंड C19 लिंक. दिख रहा है आपको? C1 2 3 आप करेंगे, दैट इज डायरेक्टली लिंक. ठीक. इसमें एडोनिसिन ग्रुप जो है, एडोनिसिल ग्रुप सेंटर में देखिए 5th कार्बन से अपने, एंड एडोनिसिन ग्रुप दैट इज द R, वेयर R is written. This is the adonysyl group. It is attached to the cobalt by 5th carbon atom by covalent bond direct to the cobalt metal. दिख रहा है आपको? R is deoxyadenosyl,
वेयर R इज डीऑक्सी एडिनोसिल, जो कि अपने 5वें कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड से डायरेक्ट कोबाल्ट मेटल से जुड़ा हुआ है। ठीक, बाकी 4 नाइट्रोजन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, दैट इज द 4 नाइट्रोजन एटम ऑफ कोरिन रिंग। One of the group is attached to the isophosphate residue, this one, which is attached to the ribose, ठीक, ribose ring, and finally the dimethyl benzimidazole is attached to the cobalt metal. दिख रहा है? This is the dimethyl benzimidazole directly attached to the cobalt metal. It is clear structure. The 4 nitrogen is of Corin ring. The 5th carbon of adenosyl group attached to the cobalt with covalent bond. One group is attached with the isophosphate residue, which is attached to the ribose, and finally the 2 dimethyl benzimidazole attached to the cobalt metal. This is all the structure of cobalamin or vitamin B12. ठीक? Now the function of vitamin B12. The biological activity of cobalt is largely based on its role of vitamin B12, a series of enzymes. Coenzyme B12 क्या है? This is the organic coenzyme B12 में it is a organic non-protein molecule that bind with the protein molecule as a special cofactor in which, अभी हमने बताया भी आपको, जैसे आपने स्ट्रक्चर देखा, in which 6th ligand of cobalt 3 is deoxyadenosine. जो 6th ligand था, जो एडिनोसिल वाला था, deoxyadenosine था, दिस इज अ स्पेशल कोफैक्टर। इसमें एक क्या है, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है विच इज अटैच टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल। देखा आपने जो रिंग में आपका बना हुआ था आइसो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए क्लियर। अभी स्ट्रक्चर में भी आपने देखा था कि क्या था, कोएंजाइम B12 एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल था एंड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल था, जो कि आप 6th लिगेंड जो कोबाल्ट का है वो आपका क्या था, डीऑक्सीएडिनोसिन। तो बेसिकली जो भी इसकी एक्टिविटी है या जो भी इसका रोल है वो बेसिकली प्रेजेंट है इन्हीं ग्रुप्स के कारण। ठीक, तो कोएंजाइम easily undergoes the homolytic cleavage of C and CO bond. कार्बन और CO बॉन्ड जब इसमें टूटते हैं तो they will give stable low spin cobalt 2 oxidation state cobalt 2 along with the carbon radical which is capable of abstracting hydrogen from the substrate, जो कि क्या करता है, हाइड्रोजन को सबस्ट्रेट से अलग कर सकता है। इसमें C और CO बॉन्ड 20 से बिल्कुल टूट जाता है जब ये किस में जाते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज में, मतलब होता है इनका जब होमोलिटिक क्लीवेज है, टूटते हैं ये 20 से टूटते बराबर, एंड कोबाल्ट 3rd ऑक्सीडेशन स्टेज से 2nd ऑक्सीडेशन कोबाल्ट 2 देता है एंड साथ में कार्बन रेडिकल मिलता है। ठीक है ना, और वो सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन जो है वो अलग कर देता है। ठीक, ड्यू टू हाई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट 1 जब कोबाल्ट 1 ऑक्सीडेशन स्टेज होता है तो उसकी हाई न्यूक्लियोफिलिक जो है कैपेसिटी, उससे वो एल्काइल ग्रुप को ट्रांसफर कर सकता है, जो कि कोएंजाइम में बहुत फेमस है ऐसे रिएक्शंस। ठीक है ना, विटामिन B12 ATP के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर भी C और CO बॉन्ड जो है वो टूटता है 20 से, 1 फ्रॉम एडिनोसिल एंड कोबाल्ट जो एडिनोसिल कार्बन से जुड़ा होता है वो 20 से टूट जाता है, C और CO बॉन्ड मिलता है हमें, जिसमें कि मॉलिक्यूल जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है टूटने के बाद हम उसको कोफैक्टर या कोएंजाइम B12 कहते हैं। जो कोबालामिन है वो साइनाइड ग्रुप अगर CN ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको साइनोकोबालामिन कहते हैं, विदाउट CN ग्रुप इट्स कॉल्ड कोबालामिन।
समझ में आया? विथ CN इट इज कॉल्ड साइनोकोबालामिन, विदाउट CN इट्स कॉल्ड कोबालामिन। ठीक। और बेसिकली इसका रोल क्या है कि कोबालामिन एंजाइम जो होते हैं वो readily accept the मिथाइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाइंड टू द कोबाल्ट। जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप अटैच होता है कोबाल्ट से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कोएंजाइम में जो एक्टिव साइड है वो, एंड कैन ट्रांसफर एट टू कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट, और उसको ट्रांसफर कर देते हैं जो कार्बन सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है वहां। ठीक। तो ये इसका रोल है बेसिकली, टू ट्रांसफर द मिथाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अंडरस्टैंड? जो भी सबस्ट्रेट में आपके जुड़ा होता है उसको रीडली क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे एक्टिव ग्रुप होते हैं कार्बन और कोबाल्ट अलग होकर कि मिथाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर लेते हैं और उसको ट्रांसफर कर देते हैं टू द सबस्ट्रेट। ठीक। अब आता है आपका रोल ऑफ कॉपर, जो आपको डिटेल में पढ़ना था। पहला था कोबाल्ट, सेकेंड वन इज रोल ऑफ कॉपर। कॉपर भी बोथ ऑक्सीडेशन स्टेज 1 एंड 2 में क्वाइट इंपॉर्टेंट है इन ऑल बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक। These ion appears to stabilize the wall of certain blood vessels including aorta and sheath around the spinal cord. ठीक। स्टेबलाइज करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं किसको? वॉल ऑफ सर्टेन ब्लड वेसल्स, aorta and sheath around the spinal cord. They are also involved in the body production, color of skin, eyes, hair and in vitro synthesis of hemoglobin. ठीक। Certain copper containing protein, copper appears serve principally electron transfer. जहां पर कॉपर क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, सच एज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। जैसा कौन सा एंजाइम है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज या प्रोटीन, जिसमें कॉपर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रोल कर, मतलब इंपॉर्टेंट रोल उसका है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक। मैनी कॉपर प्रोटीन एंजाइम पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये कॉपर 1 प्रोटीन, जो ब्लू कॉपर 1 प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो कॉपर की एक्टिव साइड है वो 4 तरीके से जुड़ी हुई है, 3 ग्रुप से जुड़ी हुई है, इमेडाजोल, फिनोलेट एंड थायोईथर लिगेंड्स। देखिए कॉपर जुड़े हुए हैं। इसका स्ट्रक्चर शायद इसमें ठीक से क्लियर नहीं है, ये यहाँ बना देती हूँ। पेन है क्या? पेन है? 3 एक्टिव साइड से ये लिगेंड से जुड़े होते हैं। कॉपर ब्लू का स्ट्रक्चर है ये, कॉपर ब्लू 1 प्रोटीन। द स्ट्रक्चर ऑफ 3 इज अटैच्ड विद द 3 ग्रुप। ये आपका फिनोलेट, ये आपका थायोईथर और ये आपका इमिडाजोल. Copper is attached with the 3 active sites by imidazole, phenolate and thioether. This is the structure where copper is attached in 3 different ligands. Their active site attached to the 3 different ligands. इसका फंक्शन हमने बता ही दिया आपको, ठीक है? Got it clear?
The role of, next is the role of zinc. Zinc is second abundant trace element in living organism. It performs both structural as well as catalytic role in protein. Example is carboxypeptidase. The role of structure of zinc finger is very important. ये zinc finger बना हुआ है. This is very important, zinc finger. Where zinc finger, the zinc ion is tetrahedrally attached by the 2 molecule of histidine and 2 molecule of cysteine. ठीक? 2 molecule of cysteine. This is the 2 molecule of cysteine and this is the 2 molecule of histidine. The copper is, zinc is tetrahedrally attached. In C2H2, this is the special kind of C2H2 zinc finger where the loop is present, 12 amino acid loop is present. At the base of this loop, both side 2 histidine and 2 cysteine molecule is present, which is tetrahedrally attached with the zinc ion donor. The zinc finger makes contact and identifies the DNA sequences. It is very important. Transcription factor often contain many this kind of zinc finger. What is the transcription factor? Anybody have idea what is the transcription factor? It is a protein that control the rate of transcription, genetic information, जो genetic information from DNA to mRNA by binding the specific DNA. It is control the rate of genetic information. Transcription factor जो है वो sequences decide करता है for the DNA and RNA message भेज. ठीक? This is called all the role of zinc or zinc finger. Is that clear? Now the role of nickel. Nickel is help in iron absorption and as well as adrenaline and glucose metabolism. What is adrenaline? It is a hormone which increase the blood circulation, breathing process and carbohydrate metabolism. It is a type of hormone. Nickel is present in RNA and DNA in our body, where its function is association with nucleic acid. ठीक? It is highest amount of concentration found in nucleic acid. Nickel का सबसे ज़्यादा concentration कहाँ present होता है? Nucleic acid में, particularly RNA में, where it is believed to involve in protein structure and function. With nucleic acid, it involve in the function of many protein and structure also. It is also help in the prolactin production that is responsible for the human breast milk formation. ठीक? It increase the absorption of iron where when the it increase the absorption of iron from the dietary iron. Increase the absorption of dietary iron. Dietary iron especially in rats, female rats, where the dietary iron was unable in ferric form. Iron in ferric form में जब नहीं मिलता है तो ये absorption को बढ़ा देता है. ठीक? Especially females rare. ठीक? क्योंकि आपको पता है ना, मैंने बताया it is responsible for the prolactin production. Is that clear? तो ये 4 मेटल आपको डिटेल में आपको पढ़ने हैं. ठीक? Now इसमें आपका टेबल कहाँ खुलेगा? तो especially the role of metals, you have seen the variety of biochemical reactions or functions where the metal plays important role. So the sodium and potassium is important in
water content balance and fluid balance inside the cells, और sodium potassium pump is very important. आपने पढ़ाई है जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी आपके और जो वो है आपकी बॉडी में, जितने भी न्यूट्रिएंट्स के अलावा और भी जैसे विटामिन मिनरल्स, जितना भी न्यूट्रिशन का सिक्रेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, इसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक. And carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus, all are involved in protein, amino acid, DNA, ADP, ATP, है ना. उसके अलावा क्रोमियम इज एसेंशियल फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. आयोडीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर थायराइड. फ्लोरीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द टीथ. ठीक. Deficiency of fluorine is caused many dental caries. Sulfur is present in thiamine, biotin, leopic acid. So every metal has a significant role in our body, and deficiency of these elements cause many health issues, different health issues. Now this is the chart or table given how the this is very important. You can note down or you can take a pic. Every metal has their special compound in the body which is quite important of their actions. Like iron is as a hemoglobin, myoglobin, oxygenase, hydrogenase, and cytochrome P450, catalase, peroxidase, cytochromes, ferredoxin, ferrin, transferrin, cytophores. They have all the compounds have different role, like oxygen transport, oxygen storage, insertion of oxygen atoms into substrate, oxidation of H2, insertion of oxygen atom into substrate, catalyzed oxidation, substrates by hydrogen peroxide, electron transfer. I told you this cytochromes is important for electron transfer. Cytochrome अभी मैंने आपको बताया अभी, है ना. In copper there are iron and ferrin is iron storage compound, transferrin is iron transport. So all iron compounds have different action in the body. Now cobalt, बताया मैंने आपको, cobalamin as a coenzyme B12, methylation of organic compound. Then copper, amine oxidase or ceruloplasmin, oxidation of amine or aldehyde, transport of iron and ferritin to transferrin. Now zinc, carboxypeptidase, जो मैंने बताया, it is a useful for metabolism of carbohydrate and hydrolysis of peptide bonds. Hydrolysis because, and magnesium is more than 300 biochemical reaction. Magnesium is important, and it is also important for plants, also chlorophyll, phototransference, photosynthesis and phosphate hydrolysis. Manganese arginase, electron transfer. Magnesium manganese combination compound is aminopeptidase, and iron molybdenum is nitrogenase, जो कि आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की को मतलब बैलेंस करता है और अमीनो एसिड वगैरह को ट्रांसफर करता है, एज नाइट्रोजन सेपरेट करता है. एंड आयरन molybdenum copper is oxidase, reductase. Copper zinc molybdenum as supraoxide dismutase. Magnesium copper zinc as phosphatase, and nickel as urase. These are the compound and which is important as in the body. They have the different functions given in the. Now the deficiency of these cause many health issues like calcium deficiency, bone and teeth decay. Symptom क्या है आपके, लिखा हुआ आपका. ठीक. Iron is anemia and weakness. Iodine, goiter, swelling of thyroid glands, mental weakness in children. Magnesium is hypokalemic and osteoporosis, weakened nausea, loss of appetite. Sodium and potassium, hypernatremia and headache, nausea, fatigue. Nickel, anemia, dermatitis, nickel से skin disease. Nickel को मैंने बताया था as a production of color and all this. तो dermatitis and anemia, allergy, kidney disease. Copper है Menkes disease, fatigue, loss of appetite. Chromium,
diabetes, zinc is liver disease. These are all the diseases and the symptoms are given. So every elements have significant role in our body, and deficiency of these cause many health issues. This is the introduction of role of metal or elements in our body. Is that clear? What is the time now? 4:20. Now the next topic is enzymes. Enzyme is composed of large protein molecules that function as catalysts for biological reaction. ठीक है ना? They increase the rate of reaction 10 to 10 power 6 times as compared to normal uncatalyzed reactions. ठीक, कहीं पर एंजाइम ऐड कर देंगे तो रिएक्शन का रेट कितना बढ़ जाएगा? 10 to times ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक, they lower the activation energy and formation of one product rather than the other. They are highly specific. स्पेसिफिक क्यों है कि हर एंजाइम्स की अलग अलग क्या होती है, स्ट्रक्चर होता है, उनका अलग अलग रोल होता है. तो हर एंजाइम्स की अलग अलग क्या होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है. तो इसलिए ये एक्टिवेशन एनर्जी मतलब जो पूरे रिएक्शन की एनर्जी है उसको कम कर देता है या कंट्रोल करता है पूरी एनर्जी को, या जैसे कि आपका जो रिएक्शन है उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो एंजाइम्स को हम ऐड करते हैं, पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है. ये हम कह सकते हैं, या तो बढ़ाएगा या घटा देगा. तो उसी प्रकार से इसलिए वेरी स्पेसिफिक इन ऑलवेज. एंड द मेटेलोएंजाइम्स. व्हाट आर द मेटेलोएंजाइम्स? A metalloenzyme is an enzymatic protein in which metal ion embedded in the cavity of enzyme and form the strong bond with donor atom of the protein. ठीक, प्रोटीन के डोनर एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं जब मेटल जो कि सेंट्रल में कैविटी में होते हैं उनको हम कहते हैं, जिन एंजाइम्स में उनको हम कहते हैं मेटेलो एंजाइम्स. ठीक, द डोनर एटम ऑफ द प्रोटीन में आइदर बी सॉफ्ट बेस लाइक सल्फर एंड हार्ड बेस लाइक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. हार्ड एसिड बेस आपने रिएक्शंस पढ़े ही है ना, उनकी कॉम्बिनेशन, सिम्बियोसिस रिलेशन सब पढ़ा है आपने. तो या तो क्या होंगे डोनर एटम ऑफ प्रोटीन में बी आइदर सॉफ्ट बेस लाइक सल्फर और हार्ड बेसिस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. और सिमिलर वे जो मेटल होंगे दे आर अटैच्ड टू द सॉफ्ट मेटल्स लाइक कॉपर, मरकरी एंड हार्ड मेटल्स लाइक जिंक, आयरन. ठीक, तो प्रोटीन अगर क्या होगा सॉफ्ट बेस लाइक सल्फर तो दे अटैच विद द सॉफ्ट मेटल like copper and mercury, and the protein ligand containing the hard base that is oxygen and nitrogen, they prefer to attach with the hard metal like iron and zinc. Got it? A reversible bound group that combines with enzyme for particular reaction that is release combined, another term is coenzyme. ऐसा ग्रुप जो कि जुड़ा होता है किससे, एंजाइम से, जो रिएक्शंस में पूरा पार्टिसिपेट करता है और वापस टूटकर दूसरे रिएक्शन के लिए तैयार हो जाता है, ये हम कह सकते हैं कि दैट इज द ग्रुप, रिवर्सिबल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप है विच रिलीज एंड कंबाइंड विद अनदर इज टर्म्ड एज कोएंजाइम. ठीक, बोथ प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या होता है, सिंपल मेटल आयन और कॉम्प्लेक्स मेटल आयन अटैच इन एंजाइम. प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या है, बोथ प्रोस्टैटिक ग्रुप आइदर या तो सिंपल मेटल आयन होगा या कॉम्प्लेक्स मेटल आयन होगा अटैच विद द एंजाइम, एंड को एंजाइम आर समटाइम्स कॉल्ड कोफैक्टर. इसको हम कोफैक्टर भी कहते हैं. ठीक, जिसमें ये दोनों ग्रुप किससे जुड़े होते हैं, मेटल और कॉम्प्लेक्स मेटल आयन विद एंजाइम, दे आर कॉल्ड समटाइम्स कोफैक्टर. Enzyme accelerate the reaction by lowering the activation energy. Enzyme lower the activation energy reaction by bridging their reactant into proximity. या तो वो क्या कर लेते, ब्रिजिंग मतलब
दो ग्रुप के बीच में क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। मतलब कौन सा बॉन्ड, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, ऐसा बॉन्ड या एक अट्रैक्शन या इंटरेक्शन हो जाता है, जिसको हम ब्रिजिंग कहते हैं, जो पास के जो दो ग्रुप होते हैं, जिसके कारण वो क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। यानी कि वो जो ग्रुप होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं कि वो रिएक्शन को आगे और तेजी से बढ़ा पाए। तो उसको एनर्जी को लो करने के लिए वो ग्रुप में क्या कर देता है, आपस के जो दो कंपाउंड होते हैं उनमें ब्रिजिंग हो जाती है। ठीक, तो दे by bridging their reactant with proximity by freezing out the relative motion of the reactant. फ्रीजिंग आउट मीन्स कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है ना, जो भी रिएक्शन का है उसको कंट्रोल करता है। ठीक, एक मिनट, इसमें डिटेल में जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो रिलेटिव मोशन ऑफ द रिएक्टेंट है, ये करता है। ठीक, और इसके साथ साथ प्रॉपर ओरिएंटिंग सबस्ट्रेट फॉर द रिएक्शन। तो एंजाइम जो है सेवरल टाइप्स की कैटालिटिक मैकेनिज्म जो है वो उनके बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ये ओरिएंटेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ओरिएंटेशन मीन्स उनके जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जिससे कि उसका जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है। जो ग्रुप ट्रांसफर इधर से उधर होते हैं तो उनका ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो जाता है, कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर। उसके बाद एसिड बेस कैटालिस्ट जो भी हमने बताया था, एसिड बेस कैटालिस्ट में आपको कि क्या करते हैं कि जो प्रोटॉन है वो फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर ट्रांसफर हो जाते हैं, या जो आपने अभी वो देखा था कॉम्बिनेशन सॉफ्ट एसिड और बेस का, इस तरीके का कोई रिएक्शन हो जाता है तो आपस में तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लो हो जाती है रिएक्शन की। ठीक, तो इस तरीके से जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली एंजाइम का क्या होता है कि बेसिकली वो जो एक्टिव साइड है उसको हम किस तरीके से बैलेंस करें या उसको हम किस तरीके से हैंडल करें कि हम अपनी जो रिएक्शन है उसको हम एक्सेलरेट करें या उसको लो करें। यही एंजाइम का मेन रोल है कि वो रिएक्शन की दर को कैसे बढ़ाए या कैसे घटाए। इसके लिए वो कई सारे प्रोसेस जो है वो कई सारी प्रोसेस मैकेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो ब्रिजिंग करे दो ग्रुप्स के बीच में, चाहे वो एसिड बेस रिएक्शन करे, चाहे वो कन्फर्मेशन चेंज कर दे ग्रुप का। तो इस तरीके से वो रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं जैसा हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। मैकेनिज्म आ गया। ये देखा गया कि जो एंजाइम है दे आर कंप्राइज एन एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ बीटा प्लेटेड शीट कन्फर्मेशन। बीटा प्लेटेड शीट कन्फर्मेशन क्या होता है, इसमें दे नहीं रखा होगा। एक होता है अल्फा। अल्फा में क्या होता है कि इस तरीके से अल्फा और बीटा के कन्फर्मेशन में ये अंतर होता है। अल्फा में कोई भी जैसे आपका पेप्टाइड, ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट ऐसे एक स्पाइरल और एक कंटिन्यूअस जुड़े होते हैं। पर बीटा में क्या होता है कि ये क्लोज इस तरीके के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज द बीटा कंफर्मेशन और बीटा टाइप ऑफ प्लेटेड शीट कंफर्मेशन। ठीक, तो ये जो एंजाइम होते हैं दे हैव मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन इन बीटा प्लेटेड टाइप कंफर्मेशन। ठीक, उसके बाद ये टू हाफ्स में डिवाइड होते हैं एंजाइम्स। एक साइड में क्या होता है आपका जैसे कि अगर हम एक स्पेशल वो ले तो वन साइड कंटेन जिंक आयन या एनी अदर आयन इज फाउंड लार्ज हाइड्रोफोबिक कैविटी, जिसमें एक ऐसा ग्रुप जुड़ा होता है जो कि क्या होता है हाइड्रोफोबिक कैविटी जिसमें होती है बीटा एंड हाफ मॉलिक्यूल में क्या होता है दे रखा है स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
मैकेनिज्म दे रखा है, स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है ना इसका। इसमें एक तरफ तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप जुड़ा होता है, कैविटी होती है, ठीक। वो क्या करती है, वो केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें होता है, वो क्या करती है कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल का कोई रोल नहीं है, वो हाइड्रोजन निकाल देती है, ठीक। अगर वाटर मॉलिक्यूल का कोई ग्रुप आएगा तो दे विल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्रुप, हाइड्रोजन, ठीक। तो वो हाइड्रोफोबिक कैविटी होती है between the beta structure and one of the molecules 6 polypeptide sequences essentially perpendicular to the chain and directed to beta structure. The metal ions thus almost in the center of the cavity. इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जैसे जिंक है, दिस इज द सेंटर, ठीक। उसके बाद आपका एक जो ग्रुप इसमें जुड़ा है ऑर्गेनिक ग्रुप, दैट इज हाइड्रोफोबिक ग्रुप, जो भी इसमें ग्रुप जुड़ा हुआ है XY। एक आपका क्या जुड़ा हुआ है, आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक। एंड हाफ मॉलिक्यूल जो है वो पेप्टाइड चेन्स के होते हैं, 6 पेप्टाइड चेन जो है वो आपस में नीचे जुड़े हैं। 6 पेप्टाइड, हाफ में क्या होता है, 6 पेप्टाइड चेन्स, बीच में मेटल आयन, उसके बाद मेटल आयन में 2 ग्रुप जुड़े होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक कैविटी होती है एंड दूसरा जो आपका होता है उसमें आपका बीटा स्ट्रक्चर इन हाफ मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोफोबिक कैविटी एंड कोऑर्डिनेट विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका होता है इसका एंजाइम का। नाउ द एंजाइम मैकेनिज्म तो हम कल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि काफी डिटेल में एंजाइम मैकेनिज्म, तो वो एक एक स्टेप आपको समझना पड़ेगा। तो इतना आपका एंजाइम का इंट्रोडक्शन था और स्ट्रक्चर था। अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है आपको? देख लेती हूँ मैं कुछ छूटा हो उसमें। आपका एंजाइम मैकेनिज्म बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगी कल, क्योंकि काफ़ी डिटेल में है और इसमें बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। जब आप एंजाइम का मैकेनिज्म समझेंगे तो आपको जो इसका स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो एंजाइम है, जो ऑर्गेनिक ग्रुप है और जो आपका पेप्टाइड है वो किस तरीके से टूटता है और किस तरीके से सबस्ट्रेट से जुड़ता है और पूरा रिएक्शन कैसे होता है। वापस पूरा डिटेल में आपको एंजाइम जब मैकेनिज्म समझाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक। स्ट्रक्चर का इसमें वो नहीं दे रखा, नहीं तो अच्छे से समझ में आता। आप चाहे तो ये वाला देख सकते हैं एंजाइम का स्ट्रक्चर। इसमें ये है आपका एंजाइम का स्ट्रक्चर, इसमें डिटेल में आपको समझ में आएगा। ये एंजाइम का स्ट्रक्चर है जो कि आपकी इसमें स्लाइड में नहीं है, ये मैंने एंजाइम स्ट्रक्चर आप देख लीजिए किस तरीके से मेटल आयन सेंटर में है, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन नीचे जुड़े हैं, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफोबिक कैविटी किस प्रकार से मेटल आयन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक। तो दिस इज ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। देखिए बेसिकली एंजाइम है जो वो लार्ज मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल, और वो कैटलिस्ट रिएक्शन में किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। रिएक्शन के रेट को काफी बढ़ा देते हैं एंड हाउ दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय कंट्रोल और बाय लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। मेटालो एंजाइम्स जैसे कि मैंने बताया, ऐसे एंजाइम्स जिसमें सेंटर में मेटल प्रेजेंट होता है विद
किससे जुड़ा होता है? विथ लिगेंड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल और द डोनर एटम ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक, और डोनर एटम कैसे हो सकते हैं हमारे? मे बी सॉफ्ट बेसिस, मे बी हार्ड बेसिस। और मेटल हमारे कैसे हो सकते हैं? मे बी सॉफ्ट मेटल और मे बी हार्ड मेटल। एक इसमें रिवर्सिबल ग्रुप जुड़ा होता है जो कंबाइंड होता है एंजाइम में, जो रिएक्शन में टूटता है, पूरे रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है और उसके बाद वापस उसमें टूट जाता है। तो ऐसा एक ग्रुप जुड़ा होता है पर्टिकुलरली जो रिलीज होता है, कंबाइंड होता है, जिसको हम कोएंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएंजाइम। और बेसिकली ये कोएंजाइम और जो सिंपल मेटल और कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, मेटल आयन होते हैं, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कोफैक्टर। क्या कहते हैं? कोफैक्टर। एंजाइम एंड सिंपल और कॉम्प्लेक्स मेटल आयन जो जुड़े होते हैं, चाहे वो नॉन एमिनो एसिड हो, ऐसे ग्रुप जब एंजाइम कोएंजाइम के साथ जुड़े होते हैं तो उसे हम कहते हैं कोफैक्टर। ऑल दिस और दैट इज क्लियर। व्हाट आर एंजाइम, व्हाट आर मेटेलो एंजाइम। ठीक, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया किस तरीके का स्ट्रक्चर। काफी सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में बी प्लेटेड कन्फर्मेशन में जुड़े होते हैं। इनमें इसके साथ साथ एक मेटल आयन होता है, एक ऑर्गेनिक ग्रुप होता है, एक हाइड्रोफोबिक कैविटी होती है मेटल आयन के साथ जुड़ी हुई। दो हाफ में एंजाइम मतलब डिवाइड होते हैं। 6 जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स नीचे जुड़ी होती है, ऊपर मेटल, बीच में सेंटर में मेटल आयन होता है, ऊपर ऑर्गेनिक ग्रुप होता है और हाइड्रोफोबिक कैविटी होती है। दिस इज द ऑल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। अब आपका मैकेनिज्म हम आज शुरू करेंगे तो फिर वो आधी रह जाएगी, तो फिर हम मैकेनिज्म और कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के बारे में कल पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अभी तक आपको रोल ऑफ मेटल और एलिमेंट्स इन द बॉडी, सम इम्पॉर्टेंट मेटल्स विच प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल जो हमने बताया आपको। What is the disease due to deficiency of these metal ions? What are the important compounds and their action in the biochemical reaction? ये सारा आपको आज हमने बताया। What are the enzyme and what are their what is the structure of enzyme? इतना आप में कुछ भी कंफ्यूजन है तो अभी आप फिर से स्लाइड को हम शुरू से देख लेते हैं। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ थोड़ा स्लो भी है सिस्टम। किसी को इसको हैंडल करना आता तो जरा आ जाएगी। फर्स्ट स्लाइड से हम एक बार फिर से इसको, आता है बेटा? आइए, आ जाइए। माउस कोई इसमें वो नहीं है, कंपटीशन नहीं हो रहा। आ जाइए बेटा। हम फर्स्ट स्लाइड से एक बार फिर से देख लेते जल्दी जल्दी। तो फिर से देख लेते हैं आज जो भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, कुछ भी पूछना हो तो आप नोट कर लीजिए। इजी है बहुत, कुछ नहीं है। थोड़ा समझने का तो दैट इज द रोल ऑफ एंजाइम जो कि हम कल पढ़ेंगे। कोबालामाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोबालामाइन में जितने भी आपने ये पढ़े, इसके एक्शन, इसका रोल, इसका स्ट्रक्चर, दैट इज इंपॉर्टेंट। द रोल ऑफ कॉपर, cytochrome oxidase, which is here the copper is responsible for the electron transfer process. Now the zinc finger is very important for the identifies DNA sequences. Role of nickel,
That's the chart. ठीक ठीक है, आइए वो मुझे पेज दे दीजिए।